If they are going to eat biscuits, then Yes, sir. either they are going to eat Parle-G or this Britannia or some one or more other companies like ITC. So these companies are going to grow. There is no other chance. If this company, if biscuits are going to sell, then Britannia is based among all biscuit companies, right? Their fundamental are based. They are debt-free company. Okay. Yes. Right, sir. Which was your another company? I think this MGL. MGL, sir. Okay. Yes. Please throw light on MGL. This is only 5 years back, recently listed company, sir. Correct. Correct. 2016 they are listed. I took data from IPO prospectus also from 2011. Wonderful. Wonderful. But price I got only from 5 years. They have also made consistent sales, which is not decreased once also. Okay. Now there is some mistake. Srinivas, there is some mistake. See, what is the mistake? It's very, not a big mistake, but it can affect your future. How? It shows only 7% growth. So I don't think 7% is the right figure. Yes, sir. Because your companies have grown by 3 times just last 10 years. है ना? तो 10 साल में 3 गुना धंधा, तो 7% कुछ गलत है. Let me check your formula. You have written 17 years. आपने कॉपी पेस्ट कर दिया फॉर्मूला. इधर क्या आना चाहिए बताओ मेरे को. Yes, sir. 10 years it should be. क्या करूँगा? 9 कर दूँ ना? Yes, sir. Actually, I have copy pasted it, sir. Yeah. 2020 to 11 9. तो इधर भी बदलना पड़ेगा. अब देखो अब कुछ फिगर आ रही है. Yes, sir. This formula thing, I'm little bit confused, sir. Okay. What confusion? Please tell me. That is what, sir. Some mistakes has happened. That is why. Okay. Now your formula is complete. Yes, see sir. what happened? The number of year you have taken 17 Yes, years. sir. Now see in real term there are only 9 years. So what we should write here? 1 divided by 9. 9 right? years. Right. So now your data is clear. Company is growing by 13%. It is good thing. Their profit are growing by 15%. So you can estimate in coming years your company should grow by 13 or 15% growth, right? Yes. So now what sir, you will estimate here? Sir, one question. This margin in some companies it is very less. In the MGL it is 12 to 18%. So is this good margin to like what should be the benchmark like when we consider margin? Okay, so see there is not a benchmark type of margin. You should consider sector to sector. This is a monopoly sector. The business which MGL is doing or other company like IGL is doing, they are having monopoly in their city. MGL is in Maharashtra, like Bombay. They are supplying gas to the houses. So this business is a monopoly. That is the reason they are having good margins. These are a very low debt companies. So it's good. That is the reason. Even GAIL is having good margin, IGL is having good margin, and MGL is having good margin. Right? So no benchmark like this, but you should be prepared. What you should get prepared? That as margin are good, we will expect that you are not going to see company from this sector move from profit to loss making. Even during bad time, these companies can move further. Right? Right, sir. So even during IPO, we have recommended this company, and you can invest in this company for long-term wealth creation, right? Sir, actually, this will be the subsidiary of GAIL, I think, sir. Yes. Should we invest in GAIL or in this company, sir? Now see, here your and our both, what we can say,
We both can differ. How? Let me explain. MGL is doing business in Maharashtra. IGL is Yes. doing business in Delhi. And GAIL is the parent company of IGL and MGL. Now in Yes, sir. Gujarat, gas is distributed by Gujarat Gas. Even Gujarat Gas is the subsidiary company of GAIL. So we all should be high prepared that GAIL is master company of all of your companies. In coming time, if we are going to have gas supply in our houses, then GAIL is going to have a very large share, right? But for example, Right, sir. if IGL is having very good growth, see IGL is in Delhi. Delhi Yes, is a city which is going to become world #1 city in the term of population, right? तो दिल्ली में ग्रोथ जबरदस्त रहेगा आने वाले समय में गैस पाइपलाइन का. तो आप ये भी कह सकते हो why I will invest in MGL, let me invest directly in IGL, right? right, अब sir. आप यहाँ पे गलत भी हो सकते हो. मान लो कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई आईजीएल में और आपने खाली आईजीएल में पैसा लगाया है, तो आप ग्रोथ का फायदा नहीं उठा सकते. ये समय पे अगर आपने गेल में निवेश किया होता इन गैस अथॉरिटी, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता. मान लो महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है, दिल्ली अच्छा कर रहा है. दिल्ली में प्रॉब्लम है, गुजरात और महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है, राइट? Right, sir. Right, sir. यू आर फ्रॉम आई थिंक सो हैदराबाद, है ना? No, Bangalore, sir. Bangalore, okay. In Bangalore, who is providing gas? Sir, still here they have not started gas. They are putting pipelines. Acha, none of the companies is there in Bangalore who GAIL provide only. gas to GAIL house. only. कुछ तो एरिया होगा ना, कोई 2-3 प्रीमियम एरिया में तो पहुंच चुकी होगी गैस की पाइपलाइन, ऐसा भी नहीं है. That is by GAIL only, sir, not by any individual company. ओके, तो अभी आप जस्ट पोटेंशियल सोचो आने वाले समय का कि आने Yes, वाले sir. टाइम में बैंगलोर, जैसे बैंगलोर 1 करोड़ का पॉपुलेशन है ना? Yes, sir. मेरे ख्याल से 20 मिलियन, सॉरी 1 करोड़ का पॉपुलेशन है. अब डिवाइड बाय 5 करो, उतने तो परिवार रहते हैं वहां पे, 20 लाख परिवार. 20 लाख में से 2-3 Yes, लाख sir. परिवार तो गैस का पाइपलाइन लेने ही वाले. ये मेरा अभी से एस्टिमेट है. तो धंधा तो Yes, जबरदस्त sir. बढ़ना चाहिए गेल का, आपके बेंगलोर में से, हैदराबाद में से बढ़ना चाहिए, चेन्नई में से बढ़ना चाहिए, कोलकाता में से बढ़ना चाहिए, राइट? ये सारे शहर में कल गैस सप्लाई होगा. तो मेरे हिसाब से आपको एक वेल्थ क्रिएटर यहां से मिल सकता है, राइट? Right, sir. Okay, I have invested in GAIL. If you think Okay. good, you can also invest in GAIL. Okay, Srinivas? Right, sir. Right, sir. Thank you, Okay. sir. Yeah, and your Another next company was Coromandel. Mandal. Yes. Yes, sir. What you will like to say about Coromandel? Sir, this is actually not a good company actually. They have, Okay. their profit has dipped a lot of times, and Okay. their sales is huge, and but profit is very less. Right. Okay. So how we will comment on this company? You know, Srinivasan ji, see, this company belongs to fertilizer sector. Now Yes, there sir. are no company in fertilizer sector in India which have grown during last 2 decades. Each and every company from this sector have done very good, very bad business. Majority of Okay. the company from this sector were in Nifty, like Nagarjun Fertilizer was in Nifty, Chambal was in Nifty, RCF was in Nifty. Today they are nowhere. Why? Because their business have not grown. But still, Coromandel, ये एक उसकी महानता है कि ऐसे खराब सेक्टर में भी ये कंपनी 20% CAGR लेके आया. लेकिन when you are doing business in खराब सेक्टर, बैड सेक्टर, आपके सामने चैलेंजेस बहुत होते हैं, आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, Yes. तो तभी इनके प्रॉफिट डाउन है, राइट? 17% Right, से sir. प्रॉफिट बढ़े. स्टिल आई विल से कि बढ़िया काम किया है इन लोगों ने. 17% मतलब अच्छी चीज है, बराबर ना? और पिछले 10 साल में But in बहुत कम short term, प्रॉफिट बढ़े हैं, yes, sir. राइट? नो प्रॉब्लम. क्या Right. एस्टिमेट लोगे आप भविष्य का? I think I should not invest in this sector.
in this company. Right. फर्टिलाइजर की कंपनी में आपने कोई भी कंपनी में निवेश किया होता ड्यूरिंग लास्ट 2 decades, then you would be making losses. But if you Yes. have invested in Coromandel, at least you have earned better or near to FD. So why Right. Coromandel was able to give you positive return and more than FD? Because this is good company among all other fertilizer companies, right? Yet, Right. if the growth is not good, let us stay away from this company, right? Srinivas ji? Right. Right, sir. Okay. What you will comment out of all these 3 companies? कि क्या चीज आपको अच्छी लगी और क्या ध्यान देना चाहिए आपको? Sir, whichever the company is giving consistent sales and profit, we should Yeah. give first preference to that, and their Absolutely. margin also should be considered. Yes. So, and we should consider the future value, and we should Yes. invest on that. Okay. So I hope now your idea is clear, right? That any Sir, company who gives you consistent income gives you high safety, right? yes, sir. Many people Right, sir. say this company is good, that company is good, but they have not seen their past history. तो उनको धोखा मिलेगा आने वाले समय में, धोखा खाएंगे ये लोग क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं देखा है. अगर इतिहास Yes, sir. देखेंगे तो हम धोखे कम खाएंगे, बराबर है? Right, sir. Okay, so good work, very good, Srinivas ji. Let me move Thank you. towards next candidate. Okay, Sunil Naran ji. Yes, Sunil, are you online right now? If you are there, you can unmute yourself and let me check your company. Sir, yes, sir. Yes, Sunil ji. Which company you have worked? Nestle, sir. Nestle. Okay. Where is this? Why I am not able to found? Sir, Okay, yeah. it's here. Sorry. Yeah. What you will like to say about Nestle? कहिए सुनील जी. Sir, this is the best company. I think over the last decade, in 2 decades, it's just 2 बार यहाँ पे लॉस हुआ है इनको, मतलब सेल्स में घटाई हुई है, कोई लॉस नहीं हुआ, बहुत कम घटाई हुई है और मार्जिन बराबर है. बहुत टॉप क्लास है, डबल डिजिट में ही जनरली रहा है और Right. ओवर द इयर्स 10% अच्छा उसका CAGR 5 ईयर थोड़ा कम दिख रहा है सेल्स में, पर प्रॉफिट उसका कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, मार्जिन भी अच्छे लग रहे हैं और इवेंचुअली जैसे अभी कोरोना वायरस है, मैं इसका एनुअल रिपोर्ट तो नहीं मिला, पर मतलब एनुअल रिजल्ट नहीं मिला उसका, पर मुझे लगता है ये बेहतर ही होगा क्योंकि नेस्ले के प्रोडक्ट्स तो ऐसे है कि जो मेरे हिसाब से कभी लॉस में तो जाने के चांसेस ही बहुत कम है. सही बात है. ये महीने में इनके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, क्योंकि मैगी बैंड हो गई थी, मैगी हाँ को सर. बैन और ये लड़ते जा रहे हैं. ये महीना जजमेंट है तो हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, राइट? लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने दुनिया को दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड दी है, बराबर कि नहीं? अगर हम ये कहेंगे कि BMW एक ब्रांड है, तो मैगी दुनिया की सबसे बढ़िया ब्रांडों में से एक है. नेस्कैफे दुनिया की बेस्ट ब्रांड में से एक है. तो इन्होंने दुनिया को कुछ सबसे बेहतरीन ब्रांड दी हुई है, राइट? जिसकी वजह से इनके मार्जिन तगड़े हैं, इन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए हुए हैं. तो हम ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे, कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बराबर? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पीयूष भाई मेड इन इंडिया नहीं है, राइट? लेकिन देखो, अगर हमें मेड इन इंडिया पे फोकस करना है तो ऐसी क्वालिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा, है कि नहीं? हमें ऐसी जी. क्वालिटी दुनिया को देनी पड़ेगी कि जिससे लोगों को कहने की जरूरत ना पड़े कि मेक इन इंडिया, वो अपने आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ले. तो हाई क्वालिटी अगर आने वाले देश में हम बनाएंगे, आने वाले समय में हम भी नेस्ले जैसी कंपनियां दुनिया को देंगे. लेकिन ये ग्रोथ क्यों इतना कम है सुनील भाई, कुछ बता सकते हो यहाँ पे? ग्रोथ इसका एग्जैक्टली मुझे कोई आइडिया तो नहीं है, मैंने CAGR 2002 से लिया. हाँ, ग्रोथ देखो 12%, 11%, यानी इतनी बढ़िया ब्रांड है तो भी ग्रोथ इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एवरेज ग्रोथ है ना? जी.
मैंने पहले भी ये चीज में पहले बताया हुआ है कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां है वो जब इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो डिपेंड है इंडिया पे, है ना, सिर्फ इंडिया पे डिपेंड है। अगर हम इंडिया की मल्टीनेशनल में इन्वेस्ट करें तो हमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिकन कंट्री से भी धंधा आने वाला है। तो आप देखोगे कि ब्रिटानिया का ग्रोथ ज्यादा अच्छा होगा, गोदरेज कंज्यूमर का ग्रोथ हिंदुस्तान लीवर से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो कंपनी खाली इंडिया में धंधा कर रही है और हम इंडियन कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो हमारी इंडियन कंपनी बाहर निकलती जा रही है, तो उसकी वजह से इंडियन कंपनी में ग्रोथ ज्यादा मिलता है। बराबर है सुनील भाई? पर फिर भी जी चलो, इट्स गुड ग्रोथ, हमें हाई कंसिस्टेंसी मिलेगी। ऐसी कंपनियां कभी लो पीई पे आती नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास कहता है जबरदस्त प्रॉफिट है। बराबर? सही तो बोला। क्या अंदाजा रखोगे 2030 का? आपको ये कंपनी कितनी अर्निंग देगी एक शेयर पे? 650-700 रुपया सिक्स। देगी ना? जी। यस। ये कब तक मिलेगा सुनील भाई 650 रुपया? यही 650 कल 1200 होगा। ये हर साल एक शेयर पे आपको इतनी अर्निंग कब तक मिलेगी? आ, ये सेक्टर भले ही इतना ग्रोथ में नहीं है पर ये लाइफ लॉन्ग हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स है वो जनरली कम नहीं होते। जैसे हम्म, कोकोला ये सब कभी चांसेस कम है कि लोग मैगी खाना बंद करके कुछ और है। और इसमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की तो बात ही नहीं आती, तो इसका कंपटीशन कोई होगा अगर कोई इवेंचुअली आता है तो मैगी हम्म, ये सब के कंपटीशन तो अभी भी है, पर अभी भी मैगी सब खाते हैं। जो टॉप क्वालिटी सही प्रोडक्ट बात। तो वही है इसमें। और हम्म, अगर कोई और आती है कंपनी तो ये मोनोपोलिस्टिक भी है बहुत, तो ये खरीद लेगी उस कंपनी का। और मल्टीनेशनल कंपनी है तो बाइंग पावर भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इवेंचुअली बराबर ये है, ग्रो ही करती रहेगी और बहुत बढ़िया कंपनी लगी मुझे। सही बात है। ये एक अनुभव लेके आते हैं सुनील भाई कि यूरोप में भी ऐसा हुआ था, यूएस में ऐसा हुआ था कि वहां की कोई लोकल कंपनी बड़ी बन रही थी हमसे, तो हमने क्या किया कि हमने वो कंपनी को टक्कर दी। ब्राजील में ऐसा हुआ था। ये सब देश का अनुभव लेके आते हैं ना, इनको बहुत काम लगता है ये अनुभव। बराबर है? जी। और इंडिया अगर हम देखें तो अभी भी मैगी और नेस्कैफे लोअर जो इनकम की जो फैमिली है वहां पे अभी भी यूज नहीं हो रही है। हम आने वाले 10 साल में देखने वाले हैं कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ये सब में जबरदस्त बूम आने वाला है। बहुत से लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में एंटर होने वाले हैं, तो वो लोग भी इनके डायरेक्ट टारगेट होंगे। बहुत से लोग मैगी और नेस कॉफी पहली बार कंज्यूम करने वाले हैं। ऐसा क्लास भी होगा आने वाले टाइम में। तो नो डाउट अ वेल्थ क्रिएटर कंपनी। राइट सुनील भाई? जी जी गुड सही वर्क, बोला आपने आपने। बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। देखो आपकी ट्रेंड क्या बता रही है, बताएं मुझे, कि मेरा धंधा मंदी में भी नहीं घटा, है ना? इसीलिए नेस्ले अभी भी लाइफ टाइम हाई करता जा रहा है। बराबर है? जी जी। ओके, चलिए, लेट मी मूव टुवर्ड्स वेल मुरुगन जी। यस वेल मुरुगन जी, you can unmute yourself and you can throw lights on the company where you have worked. Let me check. Yes sir, which company you have worked? Shri Cement. Three cements. Okay, yeah. So what you will like to tell to your other candidates about Shri Cement? ना ना, Yeah, माहित होता काय. Three cement comes into the cement sector, and the company has given a very the high growth company. Yeah. Definitely, you can consider this company for a future investment. Why? Because Okay. there is going to be infrastructure forever. That is one Right. thing, Hmm. and cement is going to be there forever. Even if new Correct. Correct. technology comes, if cement is not required, also they will switch over to some other, which is going to be the new technology. Correct. Correct. Since And they because are they have doing more research. experience. Hmm. Yeah, they have more experience, Correct. and Correct. only 3 times their sales has fallen. Hmm. Only three Um, times. Correct. their Right. sales have fallen. Yeah, Okay. that too not much. That too not much. It is very Right. a little bit. And Hmm. sales also some 3 to 4 times
it has fallen. Profit. Okay. In Right. 2009, they have seen a very big growth in 2009, and hence Right. price also has fluctuated. But the Okay. one thing I am not able to understand here is the Yeah. 2009 sales and profit has increased almost double. Uh, That is, profit is double, but still the price has not increased even in the right. high price. I'm seeing only Okay. 1148. That is one Right. doubt I have. Other than Okay. that, they have 9 times growth in the cement sector, Right. Correct. 26 times sales and 220 times. That is more than 10 times. They have almost 8 to 9 times. They have the profit of their sale. Right. So That is very very good well, Mukunji. improvement. Yeah, tell me, This sir. is a company whose sales has grown by 26 times, profit by 200 times, and that is the reason their price have moved by Uh, 400 times. yeah, Right? Wonderful. 400 times. In Yes, com- correct. Exactly. yeah, in coming time also, we can invest on those companies which have proven themselves. Here you Yeah. can see that this was the year of 2009. That was the danger most year, right? Yes, sir. 2008, 2009 was the year when the share price have fallen like anything. Now you can see Yes, sir. company's share price was 1700 and it was fallen till To 330. 330. Yeah, that is unimaginable So price. It has fallen. But still, no, that yeah, year you can see the growth like anything. Even the yeah. profit, sales So and profit. correct. So this thing we should understand, and this thing can repeat in future also. That your Definitely, that company's is a good way actually. yeah, your company's price can fall like anything, but still their sales and profits are growing. Estimate that in coming time you are going to see this 1600 price again, and you can see next year itself company's price have jumped from 300 to 2500, almost 2000 9 times in a single year. year. Yes, sir. Right now, so don't get afraid, don't get worried when your price are falling. Always smile and always say to yourself that this is normal, right? That's correct, sir. After attending your class, no, I should not see the price. That is what I have learned, the key lesson. Right, right. That is one Because thing. And the long-term I, growth, long-term, please move yeah, that. long-term growth, Yes, sir. absolutely. So I have bought this company 2010 in Shri Very good, Cement sir. and Ultratech. You know why I have bought this both the companies, Shri Cement and Ultratech? Yes, sir. Tell me, Because sir. at that time I was confused. I can't Okay. select a single company. I want to know whether Ultratech will rally or Shri Cement will rally more. So Even I मैंने thought, बोला दोनों ले लेने. Let me buy both of these companies. Right? no, I have the confusion. Still, I have the confusion. I don't have the data of Ultratech, but still, Okay. I thought of asking Uh-huh. the same question, whether I have to consider this T Cement or Ultratech. Right. So you will be confused many a time. Right? The same thing like which I was confused. But it's Okay, all sir. right. See, there was a decision. If I have bought only Ultratech, Ultratech have rallied from 700 to 4000 today. If I Okay, have sir. bought only Sri Cement, this Sri Cement have rallied from this 2000 to 20,000. Here also 10 times, there also 7 to 8 times. So it's all right. Any company you buy, if your fundamentals are strong, you are going to gain money, right? Okay. No need to worry at all. Okay, sir. Even I thought in this way, like if this company is having better margin, I would have invested 10% in this, and remaining Yeah, 5% I would have invested in Ultratech. yeah, you can do this thing. But first, we should also see sales. And Okay. sales wise, Ultratech is a national player, right? Okay, sir. So what Okay, sir. can happen? A negative thing I will like to tell you. As Sri Tell me, sir. Cement is a regional player. For example, if rain is heavily in that area particularly, if Okay. that area is affected more, then what will happen? That year will be bad for Sri Cement. Sales. Yes, sir. Yeah, Okay. sales. But Ultratech is a national player. They can cover up by selling cement more at other area, Okay. right? Okay. Average they can beat out. Oh, they can beat out. So Yes, sir. Yes. you can go wrong or you can go right. But if Yes. you will know the reason, then it's all right. You will be happy on both the way, right? Okay. Okay. Okay.
Which other company you have worked? Even during the fall times also we have to consider. We have to assume during the fall times what will happen, and in that basis only we have to invest. That is what you are trying to say, right, sir? Absolutely. Yes. Yes, sir. During fall Fine. time, also we can consider the same thing. Now see, Wonderla, I have invested. Wonderla Okay, is sir. falling every day. So it's all right. I am never worried, but I am happy that okay, due to this fall, I will able to buy it at cheapest price. Yes, But sir. it Yes, doesn't sir. mean that every day I am going to buy Wonderla. है ना? I will just Sure, sir. consider one price. Okay, let me buy this price, right? Okay, sir. So opportunities will come in your life many a time. Yes, sir. Well, Long-term growth. Actually, I want to say something. yeah. Can you just move up Okay. topmost page? Yes. Yes. Yeah. Here, actually, the long-term estimated growth is almost 17.5%, which is very good. Yeah. Again, the Right. profit is also going to be like as you said, no, 19 point is the ceiling, 19.5. We have Correct. given that. Right. And in the intrinsic value, I found 25,000 is the price where I can invest. But the low price, if you consider the low BE price, it is 17,000. Actually, Okay. during the corona effect, we got this price 17,000. We could have invested. Right. Right. Correct. Correct. What happened now? 17,000 price could not come in good market. But now Yes, as sir. Corona was there, we know constructions were halted. So we should be prepared in advance. कि ये sales, these sales are going to fall this year. So this year, we should consider a falling price. Right? Sure, sir. Yes, sir. Okay, good, good. Very good work. Yeah. And I will hope you are going to work in the same pattern in other companies also. Right? Sure, definitely, sir. Definitely. Yeah. Okay. Thank you, sir. Any other company? No, sir. This is the only single company I have worked out Yeah. so far. Okay. Right, right. Very good. Wonderful. Thank you, sir. Let me move to Viral Shah. विरल भाई, यस, कैसे हो आप? सर बढ़िया है। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत स्लो सुनाई दे रहा है विरल भाई। यस विरल, अभी सुनाई दे रहा है सर? आ रही है पर बहुत स्लो आ रही है। अगर दूसरे लोगों को सुनाई दे रही हो तो इट्स ऑल राइट। यस, अब सुनाई दिया। यस, नाउ योर वॉइस इज क्लियर। वाओ, यस विरल, वंडरफुल वर्क। आपने बहुत बढ़िया एक्सेल शीट बनाया है, वेरी गुड। आपने एक वोल्टास पे काम किया है ना? वोल्टास आपकी शीट है ना विरल? यस। चलो, क्या सीखने को मिला आपको वोल्टास से? क्या जानकारी मिली? सर बेसिक तो बिजनेस के बारे में एक चीज है कि कैसे कोरिलेटेड रहता है। नहीं सुनाई दे रहा है विरल, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है आपका। वो आवाज में बहुत इको आ रहे हैं। एक मिनट है सर। यस, अभी अभी क्लियर सुनाई दे रहा है? यस, अभी क्लियर है। ओके, एक चीज जो बिहेवियर के बारे में पता चला है बिटवीन सेल्स, नेट प्रॉफिट एंड प्राइस, ये है कि जब प्रॉफिट गिरता है तो ओके प्राइस में वेरिएशन आता है, आधा हो सकता है, बट अगर सेल्स गिरता है तो देन प्राइस ऊपर आने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा गिरता है। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। यस, नेक्स्ट। या जैसे इसका अगर देखते हैं तो वोल्टास का सिनेरियो ऐसा है कि ओके वो इफ वी सी इन लास्ट सिंस 2 डिकेड 12% से ग्रो हुआ है एंड उसका प्रॉफिट जो है वो 27% से हुआ है, बट लास्ट एक डिकेड का थोड़ा उनका ग्रोथ काफी स्लो रहा है, ओनली 5% है ग्रोथ। एंड हम देखते हैं कि बिट फ्रॉम मार्च 11 to 14 इफ वी सी दैट उसका सेल्स बहुत फ्लैट रहा है। वो 5,000 करोड़ का ही धंधा करते थे। सो इफ वी सी उसका प्राइस वो टाइम पे लाइक ऑलमोस्ट 73 तक पहुंच गया था वो, तो सेल्स काफी फ्लैट रहा था वो टाइम पे। राइट, करेक्ट। और एज सच एज अ कंपनी इफ वी सी यहाँ की वो 2014 से द ग्रोथ अच्छा है, बट देन इफ वी सी उसका प्रॉफिट लास्ट 4-5 सालों से काफी फ्लैट रहा है, अराउंड 500 करोड़ के आसपास ही है। करेक्ट। तो ऑन एन ओवरऑल अगर देखते हैं तो वी कुड सी दैट मतलब CAGR ग्रोथ ओके है, नॉट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अराउंड 8 से 10% का अप्रोक्सीमेट हो सकता है। एंड देन वी आर एस्टिमेटिंग दैट प्रॉफिट कुछ अराउंड 12-15% के आसपास हो सकता है। करेक्ट, राइट, वेरी गुड वेरी गुड।
और कोई चीज? हाँ, और एक इन्होंने एक्चुअली व्हाट वी सी, ये मार्च में स्पेसिफिक इनका प्रॉफिट काफी आधा हो गया था, 350 से 162 मार्च 2012 में। बट देन वी कुड सी दैट स्पेसिफिक प्रोविजन उनका कोई प्रोजेक्ट का हुआ था कतार में, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोविजन किया था, जिससे बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉफिट हैज वेंट डाउन। यस, करेक्ट करेक्ट। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बहुत काम लगती है। देखो आपने ये पढ़ा ना कि प्रोविजन की वजह से लॉस हुआ। अब हुआ क्या पता है, ये समय पे शेयर नहीं टूटा था, तो लोगों को लगता है वोल्टास ने लॉस किया तो भी शेयर नहीं टूटा, पर ये प्रोविजन की वजह से, ये तो सिंगल टाइम है, तो हम थोड़ी ना ये सोचेंगे अगले साल भी प्रॉफिट गिरेगा, राइट? तो ये सब चीजें बहुत काम लगेगी आप अगर ये सब चीज पढ़ने लगे तो, बराबर? वंडरफुल वंडरफुल वर्क। अब मैं क्यों पॉजिटिव हूं फिर, अगर इनका इतना अच्छा ग्रोथ ही नहीं है तो? विरल भाई, मैं वोल्टास इकट्ठा करते जा रहा हूँ, वाई? आपने बताया था सर एक बार कि ये जो एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री है वो अभी इमर्जिंग है, सो प्रोबेबली इन फ्यूचर में वो सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, जहाँ पे ये कंपनी ज्यादा सेल्स कर सकती है। राइट। तो एक बात तो तय है ना विरल भाई कि इंडिया में अब तक एसी नहीं बिके। राइट। लोग डेटा देते हैं कि इंडिया में 5% एसी है, पर 5% डेटा लेने की जरूरी नहीं है, हमको इधर से पता है एसी की सबसे बड़ी कंपनी का धंधा एकदम एवरेज बढ़ा है, राइट? क्योंकि इंडिया की इनकम ही ऐसी है। हम 1.5 लाख रुपए की एवरेज इनकम से ये नहीं कह सकते कि आधा इंडिया एसी लगाएगा, इम्पॉसिबल। पर 2030 तक एवरेज इंडियन की इनकम 5 लाख रुपया हो जाएगी। तो मेरे को ये लगता है कि बहुत घरों में एसी लगने वाले हैं। दैट इज द रीजन आई एम पॉजिटिव। अब ये चीज चाइना के डेटा की सब कंपेयर की तो पता चला वहां पे बढ़िया बिके है, लेकिन फिर भी अगर उनके धंधे नहीं बढ़े तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बराबर है? अब तक तो हमने कोई ग्रोथ देखा नहीं है, राइट और रॉन्ग? हाँ सही है सर। राइट। अब देखो आने वाले समय में क्या होता है, अगर आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रिक की कोई कंपनी में निवेश करना है तो वोल्टास उसमें सबसे अच्छी कंपनी है, क्योंकि बाकी की कंपनियों ने लॉसेस किए हैं। आप वर्लपूल ले लो, आप ब्लू स्टार ले लो, राइट? वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पर कोई कंपनी ये सेक्टर में ऐसी नहीं है जिसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए हो, ये खराब सेक्टर में भी, पर वोल्टास ने किए हैं, तो कंसिस्टेंसी को ध्यान में रख के हम निवेश कर सकते हैं, बराबर है? Yes. ओके, गुड, बढ़िया। और कौन सी कंपनी पे काम किया आपने? सर वो नीचे ही है, उसमें क्विक हील अच्छा। है, ओके, सीमेंस है। यस, क्या कहती है क्विक हील? क्विक हील का सर ऐसा है कि ये 2015 में आईपीओ में लिस्टेड हुई थी, तो इसमें एक्चुअली इफ यू सी ये 2011 से उसका डेटा है, तो 11 से 15 तक तो ये काफी अच्छा ग्रोथ था उसका, बट अगर हम लास्ट 5 साल का देखें तो आईपीओ में लिस्ट होने के बाद ये काफी फ्लैट रही है, मतलब सेल्स ग्रोथ बहुत फ्लैट है, एंड ओके सेल्स ग्रोथ में उतना वेरिएशन नहीं है, बट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वो मुझे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट इतना कैसे। सही बात है। अब ये और कंपनी, हाँ बोलो 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 बोलो। या दूसरा एक है कि इफ आई सी उसके मैंने ये एक्टिव लाइसेंसेस उनका कुछ एनुअल रिपोर्ट में आता है, वो देखे तो इफ यू सी दैट उनके लाइसेंसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं, तो लाइक पीपल आर यूजिंग, और वो अभी एनी हाउ जैसे हम ज्यादा होगा तो इंटरनेट इंडस्ट्री और ये सब होगा तो प्रोबेबली लोगों को एंटीवायरस प्रोटेक्शन ये सब ज्यादा लगेगा। बराबर है। लेकिन फिर भी धंधा नहीं बढ़ रहा है ना? देखो आईपीओ के समय यही स्टोरी इन्होंने कही थी कि लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत बिकेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। यहाँ पे भी इनका जो धंधा था 2016 में, 2020 में भी वही धंधा है, ये नहीं चलेगा, राइट? अगर आप अपने धंधे को नहीं बढ़ा सके तो हम तो इन्वेस्टर है, हम तो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर की नहीं? हमको तो ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ। क्योंकि हम ग्रोथ लेने तो तुम्हारे पास आए नहीं, तो फिक्स डिपॉजिट थी 8% वाली, पर वो जिंदगी भर 8% देने वाली थी,
ग्रोथ लेने तुम्हारे पास आए और तुम ग्रोथ नहीं करोगे तो थोड़ी चलेगा। जब तक ग्रोथ ना दिखे विरल भाई इससे दूर रहो, बराबर है। सही है, एक्चुअली इसका प्राइस भी अभी 330 था आईपीओ के टाइम पे, अभी 62 हो गया है, मतलब लोअर 62 तक पहुंच गया है। अभी इससे दूर रहना जब तक ग्रोथ नहीं दिखता है, बराबर है। कोई स्टोरी नहीं चाहिए सही है। हमको, हमको धंधा चाहिए। बराबर ना। ओके, सीमेंस पे काम किया है आपने, गुड। क्या है सीमेंस में आपका? ओके, सीमेंस क्या का कहना चाहोगे? यस, उसका सीमेंस का लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं 2000 सी से, तो लाइक ग्रोथ काफी अच्छा है, 15% है। एंड बट ओके, टर्म्स ऑफ 15% के हिसाब से उसका प्रॉफिट 14% बढ़ा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो आई अंडरस्टैंड दैट इसमें क्या एक्सपेंडिचर्स और ये काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली, इसलिए उसके प्रॉफिट मार्जिन्स परसेंटेज वाइज अगर देखें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है उतने, इट इज एवरेज इज अराउंड 7-8%। राइट। बट एज सच इफ यू सी एज अ कंपनी, यस, वो बिजनेस तो उनका सेल्स एटलीस्ट तो काफी बढ़ रहा है, एंड प्रॉफिट में competitive fluctuations है, but if we see from last 4-5 years, it is coming to average around 7 to 8% ही average profit आ रहा है, sorry, average sales growth आ रहा है। राइट। आपने देखा विरल जी कि आपने बहुत सी कंपनियों में पिछले 4-5 साल में कम ग्रोथ देखा है, ये नोट किया? हाँ, वो हमने आज ऑलमोस्ट जितने भी काफी लोगों सारी से कंपनी बात में की, है। हाँ, क्यों ऐसा है? सब कंपनी में ऐसा क्यों? तो अभी वही आई तो डोंट, हम कंपनी मीटिंग में बड़ी कहते हो हैं, रही है। नहीं, वही हम कहते हैं कि ग्लोबल मंदी चल रही है पिछले 5 साल से, तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, जो 5-5% बढ़ती थी, वो तो 3-4% पे आ गई है। पिछली सेंचुरी में दुनिया 8% से चलती थी, ये 2021 के सेंचुरी में खाली 4% का ग्रोथ है, तो वो इफेक्ट आपको इधर भी तो दिख रहा है, बराबर है? तो ग्लोबल इफेक्ट करती है आपको यहाँ पे भी, बराबर है। फिर भी ये तो चलो इंडिया है तो अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, बाकी तो बहुत बुरे हाल है नहीं तो दूसरी जगह के। अब जो सीमेंस का आपने रिसर्च किया है ना, ये सेक्टर में 100 कंपनी होगी, 80 कंपनी लॉस कर रही है, कई कंपनियां उठ गई, ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर सेक्टर है। फिर भी सीमेंस जैसी कुछ कंपनी है जिन्होंने ऐसे खराब सेक्टर में भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए, तो ये इनकी महानता है, बराबर की नहीं? नहीं तो ये भी लॉस कर सकती थी, राइट? पर ये सेक्टर अच्छा नहीं है, इतना अच्छा ग्रोइंग सेक्टर नहीं है इनका, जिनकी वजह से इनको सीमेंट जैसी डेब्ट फ्री कंपनी भी नहीं बढ़ पा रही है, बराबर? सही है। तो सेक्टर ग्रोइंग नहीं है, दूर रहो। फिर भी अगर ये सेक्टर में निवेश करना है तो सीमेंट्स आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, बाकी कोई कंपनी में दम नहीं है, बराबर? और कोई चीज आप पूछना चाहोगे ये पूरी तीनों कंपनियों में? हाँ, मतलब कंपैरेटिवली सर, जो वैसे अभी जो आगे के जो सेक्टर्स देखे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बाकी का सेक्टर्स में इफ यू सी इवन ग्रोथ रेट लास्ट 10 साल का भी 12-15% है, और इसका प्रोबेबली एवरेज है, तो वो ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, तो मत करो इसमें, फिर 7% वाले ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, पैसा 60% से बढ़ेगा। फिर एफडी में क्यों ना रखूं मैं, पीपीएफ में क्यों ना कटाऊं ज्यादा, बराबर की नहीं? हमारे लिए बेंचमार्क तो एफडी ही है, राइट? सही है। ओके, तो मैं अरुण त्यागी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू विरल, बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने आपके सेक्टर की चीजें शेयर की लोगों से, राइट? अरुण त्यागी जी, यस सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका सेक्टर मेरे सामने है, एचडीएफसी। ये क्या जानकारी मिली जब आपने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एलआईसी जैसी कंपनियों का रिसर्च किया? यस प्लीज सर, बिल्कुल कंसिस्टेंसी वाली कंपनी है। सिंस 2001 बिल्कुल कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ती जा रही हैं, एक साल भी सेल्स डिग्रो नहीं हुई। सही बात है। तो प्रॉफिट्स भी खाली एक बार डिप बराबर है। हुआ है, वो भी मार्जिनल डिप हुआ है, कोई ज्यादा डिप नहीं हुआ है। 20 साल में खाली एक बार,
ऐसा जी कैसे खाली हो एक सकता बार है? ऐसी कंपनियां भी होती है दुनिया में। हाई सामने कंसिस्टेंट है सर। है। यस अरुण भाई, मैं मेरे एक दोस्त की बात जी बताना चाहूंगा यहाँ पे। 2007 का समय था और बाजार जबरदस्त गिर रहा था, ह्यूज जी वोलेटिलिटी थी ये समय पे। तो मेरे एक दोस्त के पास उस समय करीबन 10 लाख के एचडीएफसी थे। उनके पापा राइट राइट जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने 10 लाख के जी जी एचडीएफसी लिए हुए थे। इन्वेस्टमेंट तो उनका होगा कुछ 5-10 हजार का, पर वैल्यू 10 लाख हो गई जी थी। अब जी वो दोस्त को ऐसा लग रहा था कि एचडीएफसी तो बहुत चल गया है ना? अभी हम सबको भी जी लगता है ना ये तो बहुत चल गया। जी उस समय की ग्रोइंग कंपनी एक थी सुजलॉन नाम की, नाम तो सुना ही होगा। जी जी अमरीश पुरी ऑफ स्टॉक मार्केट। उसने सोचा कि एचडीएफसी तो बहुत चल गया है, चलो एचडीएफसी के पैसे को सुजलॉन में डाइवर्ट कर दिया जाए। तो यस सारे एचडीएफसी बेचे 2007 में, जब ये प्रॉफिट करता था 1700 करोड़। जी आज वही एचडीएफसी 17,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और पैसा गया सुजलॉन में, जो उस समय भी लॉस करती थी आज भी लॉस कर रही है। क्या हुआ जी बोलो अरुण जी? जो कमाया ऐसा, एचडीएफसी में वो सुजलॉन में चला गया। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बराबर। तो ये जी गलती हमसे भी ना यस हो कि हम भी कल लोगों को ये कहे कि ये तो बहुत चल चुका है। अभी तो 100 साल पुरानी ये कंपनियां होगी, लोग 50 साल सर बाद एचडीएफसी की बात करेंगे, है ना? यस सर या इससे पहले मैं भी यही कर रहा था। ओके, मैंने एस्ट्राल पॉली 40 रुपए में लिया था, 400 रुपए में बेच दिया था। अब आज क्या आज अभी बात डिस्कस हुआ वो कितना हो गया। है। तो आपने 10 गुना तो किया वो समय पे, बराबर ना? जी जी और वो 10 यस गुना कुछ भी नहीं है। अब तो 100 गुना होता सर। सवाल ही नहीं ना। तो 10 गुना से भी कभी खुश नहीं हो जाना है, राइट? यस राइट। सही है, बढ़िया सर एक्सपीरियंस मिला इसमें आपके मेरे को एक एचडीएफसी से। सर इसमें एक बोलो। पूछना है मेरे को। इसका हमारा हाँ, जो प्राइस आता है बाई प्राइस आ रहा है 2979 राइट। और अभी प्राइस चल रहा है 1820। बराबर है। और इवन अगर लोएस्ट पी पे भी लेते हैं हम 12 पी पे भी 1930 आता है, उससे भी कम है। बराबर तो है। अभी हम एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए सर इसमें। ओके, एक मिनट। 1930 रुपया आपका भाव चल रहा है और 3,000 रुपया वैल्यूएशन बनता है, बराबर ना? यस तो बहुत सर सस्ता हुआ। 1820 सर करंट प्राइस है 1820। राइट। ऊपर लेकिन ऊपर है देखो सर, ऊपर दिया अरुण भाई, हुआ। क्या करने का पता है? यहाँ पे यस 2021 लिखा है ना आपने, या और एक यस सर कॉलम बना दो और लिखो कोरोना वाला 2021। आपका ये जो 2021 यस है ना, ये सादा 2021 है, अभी कोरोना की एंट्री नहीं है इस रिजल्ट में। यस सर यस अब अपने आप को पूछो कि कोरोना वाले 2021 में इनका धंधा कैसा होगा, जबकि इनका राइट 26%, ये जो 1 लाख करोड़ में धंधा आ रहा है वो एचडीएफसी बैंक यस से आ सर रहा है, जिनका धंधा गिरेगा। यस खुद हाउसिंग राइट फाइनेंस में से 50,000 करोड़ कर रहे, वहां पे लोग हफ्ते नहीं भरने वाले, वो धंधा गिरेगा। जी सर तो आप सस्ता है ऐसा मत सोचना, आप नए राइट वैल्यूएशन डालो कि इस साल अगर इनका प्रॉफिट आधा हो गया तो क्या, पूरा ही सोचो पहले से, बराबर ना? यस यस सर। कि सोचो तो फर्स्ट 80 क्वार्टर सर रुपए की इसका अगर इनकी वैल्यूएशन अर्निंग होती है, हाँ? इसका वैल्यूएशन फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट के बाद निकालें सर। नहीं, अभी से निकाल सकते हो आप, अंदाजा तो लगाओ ना कि एक यस क्वार्टर निकल गया। सोचो एक क्वार्टर में 25%, देखो वैसे इनका धंधा कितना बढ़ रहा है, इस साल 6% से बढ़ा है। जी मान सर लो आप ये सोचते हो कि पहले क्वार्टर का धंधा जीरो, जीरो कभी होगा नहीं क्योंकि इनके बहुत यस से सर धंधे जो चल रहे हैं, पर जीरो सोचो तो भी पूरे साल में इनका धंधा 15% से गिर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, 10-15% राइट से इफेक्ट आएगी, जिससे इनका श्योर प्रॉफिट 30% से बढ़ रहा है, वो हो सकता है हम 20% से डाउन देखें, राइट 20%, 30% डाउन देख सकते हैं, राइट? राइट यहाँ पे मैंने क्या किया, 160 लिखा है ना, मान लो यहाँ पे यस मैं सर 120 लिखता हूँ, 30% डाउन, राइट? यस सर तो भी आपका वैल्यूएशन कितना हो रहा है, 2,000 हो रहा है, तो ये अच्छे भाव पे राइट मिल रहा है, राइट? बहुत सस्ता मिल रहा है सर, वही मैं देख रहा हूँ।
आप अपने अंदाजे के हिसाब से चलना कि मैंने अंदाजा Right. लिया कि 30% प्रॉफिट गिरे तो क्या भाव, अब मान लो आधे प्रॉफिट आए तो क्या भाव, बराबर है। आप अंदाजे के Right. साथ चलते जाना तो मजा आएगी और पता भी चलेगा भाव कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बराबर। राइट सर, राइट सर। इसमें तो मैं पहले से भी SIP कर रहा हूँ सर, सिंस 600 रुपए से लेते आ रहा हूँ। वेरी गुड, और करते जाओ, कोई चिंता नहीं। राइट जी हाउसिंग सर, फाइनेंस की सबसे बड़ी कंपनी है और मुझे सर। कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी ऐसी है जो 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी 2030 राइट तक, क्योंकि दुनिया में जी कई सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो 10 लाख करोड़ का धंधा कर रही है, जी सर, ये बराबर। कंपनी भी पहुंचेगी। तो हम एक काम करते हैं अभी अरुण जी, जी देखो जी सर, 9:25 हो गई है, 9:25 तो जी काफी लेट हो गए हम लोग अभी, राइट। जी लेकिन सर, फिर भी जी। आपने जो काम किए उसमें कुछ खास कमेंट करना चाहो जो लोगों को पता रहनी चाहिए, आप कुछ ध्यान कराना चाहो तो मुझे बताओ, तो मैं वो जगह पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। सर तीनों कंपनियां मेरे पास ICICI, GI और LIC और HDFC तीनों कंसिस्टेंट कंपनी है, तीनों में बाइंग की जा सकती है सर। राइट, वैल्यूएशन भी अच्छा है तीनों का। बराबर है। पर LIC और HDFC तो एक ही कंपनी हो गई, एक ही सेक्टर की, तो क्या करेंगे? HDFC इज बेटर देन LIC सर। ओके, LIC का बॉन्ड 1978 में हुआ है, तब से लेके जी आज सर, तक इसने कभी लॉस नहीं किया है, हाई LIC कंसिस्टेंट। ने किया है, हाँ, कभी लॉस लॉस कभी नहीं नहीं किया किया। सर, यस, लॉस कभी नहीं। तो HDFC ने भी कभी नहीं किया है, बराबर ना? जी नहीं, जी सर। ओके, तो HDFC तय करें हम लोग निवेश के लिए? जी सर, HDFC इज बेटर देन LIC। ओके ओके, चलिए वंडरफुल, तीनों कंपनी बढ़िया है। ICICI GI में भी निवेश कर सकते हैं, हाई कंसिस्टेंसी है ना। जी ये कंपनी यहाँ पे लॉस करती थी 2012 तक। ये सर इसमें इनका क्लेम था उस साल, कुछ फायर का, और उसमें क्लेम हुए थे, उसकी वजह से लॉसेज आए। नहीं तो आने वाले समय में भी हो सकता है ना, इस साल भी कोरोना के क्लेम आ सकते हैं, बिल्कुल आ डेथ सकते हैं। क्लेम, क्लेम तो आएंगे कभी भी बहुत ज्यादा, तो ऐसा हो सकता है यस गड़बड़। जी सर, जी सर। इट्स ऑल राइट। ओके, सर इसमें कोरोना इफेक्ट कैसे निकालें, कितना हो सकता है देखो अंदाजा? कोरोना इफेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखो जो भी लेटेस्ट जी आए, और उसमें सबसे आखिरी पैराग्राफ में मैनेजमेंट कमेंट लिखा होगा, उन्होंने लिखा राइट होगा उसमें कि हम ये उम्मीद करते हैं इस साल से, जी सर, बराबर है। उसमें से देख राइट के अंदाजा लगाओ और फिर धीमे धीमे अंदाजे को एडजस्ट करते रहना, जैसे जैसे Q1, Q2, Q3 के रिजल्ट आते जाते हैं, बराबर है। ठीक है, ठीक सर। ओके, तो ओके, अरुण जी थैंक यू सर, गुड। जी सर, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से हमारी गुड बात नाइट। या गुड नाइट कई लोगों से नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आप लोगों को कलेक्टिवली पूछना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज पे अगर दूसरों को भी गौर कराना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख दो, मैं आपको मौका देता हूं और फिर मैं आपकी बात लोगों से कराता हूं, राइट, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह नहीं जाए, बराबर ना। यस, जी सर। एनीबॉडी who want to put your point, please write down in this comment box. यस, कई लोगों से बात नहीं हो पाई है, साहिल, मुनीर, असीम जिसने अब तक बढ़िया काम किया है, रब नाम असीम से बात नहीं कर पाए, मुनीर से बात नहीं कर पाए, भाग्या मैडम से बात नहीं कर पाए, शैला मैडम से बात नहीं कर पाए, है ना, कई लोगों से हम लोग बात नहीं कर पाए हैं, तो इसका हमें खेद है, समय कम होने की वजह से। ओके, वंडरफुल टीम श्रीनिवास जी, यस डेफिनेटली आपकी टीम बहुत वंडरफुल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो पूरी टीम है ये बढ़िया काम करेगी और ये आने वाले समय के रिसर्चर बनने वाले हैं। मुनीर, नो वरीज। मुनीर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, मुनीर ऑनलाइन आ जाओ तो। हेलो सर।
आवाज आ रहा यस मुनीर, कैसे हो? है? बढ़िया सर, कैसे हो आप? एकदम फाइन। आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है मुनीर? ऐसा तो नहीं है ना कि पापा मेरे को बोलेंगे नहीं तो कि इसको कहाँ लगा दिया है आपने पढ़ाई के समय नहीं पे? नहीं शेयर नहीं नहीं बाजार शेयर बाजार, पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा नहीं है? हाँ हाँ, पढ़ाई चल रहा है, सही सही चल यस, रहा है। मैंने तो ये देखा है मुनीर कि जो लोग हाँ फोकस्ड होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स में भी फोकस्ड होते हैं, वो शेयर बाजार करे शेयर बाजार में फोकस होते हैं, और अगर पढ़ाई में भी वो लोग फोकस्ड होते हैं, बराबर की नहीं? तो फोकस तो एक हैबिट है, हम जो काम करेंगे फुल फोकस के साथ करेंगे, बराबर ना यस सर, यस सर। मुनीर? आपको एक काम हाँ करना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर समय हाँ मिले तो, अगर समय मिले तो हाँ हाँ रिसर्च एनालिस्ट की एक एग्जाम आती है। हाँ रिसर्च हाँ एनालिस्ट यानी वो व्यक्ति जो अपने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है, हाँ राइट? हाँ। आपको अगर समय अनुमति दे तो आप रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्टर करो अपने आप को। मेरे ख्याल से इंडिया ओके के सर, यंगेस्ट रिसर्च एनालिस्ट की तरह आप बाहर आओगे, ओके सर, कर देते हैं। सर किधर राइट? होता है, एनएससी पे या बीएससी पे? आप मोहम्मद भाई को जानते हो, मोहम्मद दराज खान? हाँ हाँ, सीएस। यस, अपने जो कंपनी सेक्रेटरी है। आप क्या हाँ कर हाँ हाँ। सकते हो, डायरेक्टली NISM के वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो। आपका एज कितना हाँ है हाँ। अभी? एज 19, मतलब 19 था। 19? यस, तो 19 की एज के आरे नहीं होते रिसर्च एनालिस्ट के लिए, उनको 10 साल का अनुभव चाहिए। लेकिन आप हाँ क्या कर सकते हो, कम से कम एग्जाम क्लियर कर सकते हो, और सेबी को ओके। बता सकते हो कि 19 की उम्र में भी हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। हाँ आर्ग्यू हाँ कर सकते हैं हम कम से कम, राइट? कि यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में मेरे हिसाब से अगर आप कुछ भी पढ़े बगैर भी आप एग्जाम दोगे ना, हाँ हाँ। 90 से कम नहीं आएंगे मुनीर। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, पढ़ लेंगे वो तो, कोई नहीं। अरे यही सब चीज होती है दोस्त, एक बार किताब पढ़ लेने की, पर आप एरा आरे की एग्जाम के लिए अपियर हो जाओ, ये एक बढ़िया ओके उदाहरण ओके होगा पूरे इंडिया के लिए, बराबर है? ओके, पक्का हम्म, पक्का सर। ओके, यस। और फिर चलिए, हम थैंक यू सर। तो सेबी के साथ थोड़ा कम्युनिकेट भी करेंगे इस चीज के लिए, बराबर ना, कि ओके एक्सपीरियंस में ओके थोड़ा हमें डिस्काउंट दे, ओके। राइट? और चलिए बहुत। सर आपसे एक यस बात भैया। बताना था कि 6:30 से आप 9:30 तक कंटिन्यूअसली 3 घंटे आपने सेशन किया, जबकि 1.5 घंटा बोला था। तो वो आपको थैंक यू बोलना था कि आप इतना सारा टाइम हम लोगों को सबको दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा है, देखो मेरे को कल तो अभी सुनना पड़ेगा प्रियंका से कि आपने ज्यादा टाइम ले लिया, इतना ज्यादा टाइम मत लो, क्योंकि देखो सबका प्लानिंग भी होता है, बहुत लोगों को खाना बनाना है, कई लेडीज है, आपको पढ़ना होगा, कई लोगों को और काम करने हैं। पर क्या है कि ये टॉपिक को ऐसा टॉपिक है कि हम ये नहीं करना चाहते कि कोई बोले नहीं मेरा रह गया, राइट? तो सबका समय हमने दिया है, बहुत लोगों को नहीं समय दे के सके, उसकी खेद है। पर शेयर नहीं बाजार नहीं ऐसा है ना मुनीर की, कंटिन्यू 6 घंटा करो तो ये कभी समय कम नहीं होगा, बराबर ना? हाँ 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 हाँ। चलिए बढ़िया, आप लोगों के साथ एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। कल थैंक से यू सर। हमारा नया क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो और भी कोई चीज इसमें अगर मिसिंग हो इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, और हम कल से नए चैप्टर पे जाने वाले हैं, राइट? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।